Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing Chapter 10, Preparation of Final Accounts, the weightage for which is 20 marks. Here is the problem, page number 329, question number 3. From the following trial balance, prepare final accounts of Sachin Traders for the year ended 31st March 2019. So here is the trial balance given. Trial balance as on 31st March 2019. Debit balances, credit balances. We are provided with some additional information, that is adjustments, outstanding salaries, closing stock, prepaid insurance, outstanding wages, depreciation on machinery. Here is the solution. First, we'll be preparing trading and profit and loss account. The heading for which will be trading and profit and loss account of Sachin Traders for the year ended 31st March 2019. The format for which will be particulars amount rupees, particulars amount rupees. Towards extreme left will be writing DR debit and towards extreme right will be writing CR credit, followed by balance sheet. The heading for which will be balance sheet of Sachin Traders as on 31st March 2019. The format for which will be liabilities amount rupees, assets amount rupees. So we have adjustments on 5 things: salary, outstanding salaries, closing stock, prepaid insurance, wages, and depreciation on machinery. So these items will appear twice. Remaining all items which are appearing on trial balance will appear only once. So before solving the problem, let us remember the hint that whatever are given as trial balances, whatever are given as debit balances in trial balance, those will appear on debit side of the solution, either on debit side of trading account or on debit side of profit and loss account, और it will be appearing on asset side of the balance sheet. जो भी डेबिट बैलेंसेस में दिया हुआ है वो सॉल्यूशन के डेबिट में आएंगे, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएंगे, या फिर बैलेंस शीट के एसेट्स में आएंगे. जो भी क्रेडिट बैलेंसेस में दिया हुआ है वो क्रेडिट में आएंगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएंगे, या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएंगे. लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम. सबसे पहले हम ये 4 चीजें लिखेंगे: ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक. तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 2500. तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 2500. फिर क्या लिखेंगे? टू परचेजेस. इट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन इनर कॉलम. तो परचेजेस की वैल्यू कितना है? देखिए 5000 रुपीज. इसमें से अपने को क्या माइनस करना है? परचेजेस रिटर्न्स. तो परचेजेस हमेशा डेबिट बैलेंस में रहता, परचेज रिटर्न्स इसके अपोजिट क्रेडिट बैलेंसेस में रहते. यहाँ पे परचेज रिटर्न्स 500 रुपीज. सो 5000 माइनस 500 इट बिकम्स 4500. सो इट विल बी शोन एज टू परचेजेस 5000 लेस परचेज रिटर्न्स 500. 5000 माइनस 500 इट बिकम्स 4500. फिर क्रेडिट में आके लिखेंगे बाई सेल्स. सेल्स हमेशा अपने को क्रेडिट में मिलेगा. सेल्स 9000 ये इनर कॉलम में लिखेंगे बाई सेल्स 9000, जिसमें से अपने को सेल्स रिटर्न्स माइनस करना है जो अपने को अपोजिट डेबिट बैलेंसेस में मिलेंगे. सेल्स क्रेडिट में मिलता, सेल्स रिटर्न्स डेबिट में मिलेंगे. तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न 600 है. सो 9000 माइनस 600 इट इज 8400. तो ये इधर बताएंगे हम बाई सेल्स 9000 minus sales return 600 it becomes 8400. Then coming to closing stock. Closing stock is an adjustment item. This will appear twice. Once on credit side of trading account as by closing stock 4500. Next it is an asset. It will be shown on asset side of the balance sheet. तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक 4500. अब ये 4 चीजें लिख देने के बाद हम स्टार्टिंग से पढ़ते जाएंगे, जो चीज जिधर आ रही उधर लिखते जाएंगे. फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें जो है वो ट्रेडिंग में आते, ऑफिस से रिलेटेड चीजें जो है वो ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस में आते, बाकी जो अपनी चीज है वो एसेट में आती, जो अपने कर्जे है वो लायबिलिटी में आते. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट कैश. कैश क्या है? पैसा. पैसा अपना रहता तो अपनी चीज को हम क्या बोलते हैं? एसेट. तो इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड. तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे कैश 3000. देन आफ्टर कैश वी हैव परचेजेस. ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बता दिए. देन वी हैव वेजेस. वेजेस किसको बोलते हैं? इट इज द रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर, भत्ते को बोलते हैं. सो ये फैक्ट्री का आइटम है, सो दिस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. इस पे अपने को एडजस्टमेंट है, सो इट विल बी शोन इन इनर कॉलम. इनर कॉलम में बताएंगे टू वेजेस 1000 रुपीज. इस पे एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 300. तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे. So it will be shown as टू wages 1000 add outstanding 300, so it becomes 1300. इसका मतलब क्या आता? भत्ते के नाम पे हम 1000 रुपीज पे कर दिए और 300 रुपीज पे करना है. सो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस इज 1300. अब इसमें से पे कितने करना है? 300. सो इट विल बी आवर लायबिलिटी. सो इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 रुपीज. आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 रुपीज. नेक्स्ट, after wages we have opening stock. This we have shown it on debit side of trading account. Then we have salaries. ये ऑफिस का आइटम है. सैलरीज ऑफिस में देते,
ये this will be shown on debit side of profit and loss account. Even we have adjustment on this, so it will be shown in inner column as two salaries 1000 rupees. इस पे भी adjustment है, outstanding salaries 500 rupees. So again it will be added. Outstanding कभी भी plus करते, so it will be shown as two salaries 1000 in inner column, add outstanding salaries 500 in inner column. So 1000 plus 500 it becomes 1500. तो इसका मतलब क्या आता, तनख्वाह के नाम पे 1000 रुपए पे कर दिए और 500 रुपए पे करना है. सो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज इज 1500. तो अब अपन पे कितना करना है, 500 रुपए और पे करना है. सो इट विल बी अवर लायबिलिटी. सो सेकंड टाइम आउटस्टैंडिंग सैलरीज विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500 रुपीज. आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500 रुपीज. देन आफ्टर सैलरीज वी हैव इंश्योरेंस. अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस देता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते. ऑफिस इंश्योरेंस देता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते. खाली इंश्योरेंस बोला तो हम ऑफिस का है समझ के प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना. वी हैव एडजस्टमेंट ऑन इट. तो पहले इंश्योरेंस 900 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देंगे हम. टू इंश्योरेंस 900 रुपीज इनर कॉलम में लिखे. इस पर एडजस्टमेंट क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपीज. तो प्रीपेड का मतलब क्या, जो पैसा आप वक्त से पहले पे कर दिए. तो टोटल इंश्योरेंस का अमाउंट कितना पे करे, 900 रुपीज. इसमें से प्रीपेड कितना है, 400 रुपीज. सो आउटस्टैंडिंग प्लस करते, प्रीपेड माइनस करते. तो टू इंश्योरेंस 900 रुपीज माइनस प्रीपेड 400 रुपीज. तो 900 में से 400 चले गए तो 500 रुपए. तो ये जो 400 रुपये आप एडवांस में पे कर रहे, नेक्स्ट टाइम जब सब पे करते तब अपने को पे करने की जरूरत नहीं है. सो प्रीपेड इंश्योरेंस इज ऑलवेज एन एसेट. इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपीज. तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपीज. नेक्स्ट आफ्टर इंश्योरेंस वी हैव कैरेज ऑन परचेजेस. कैरेज ऑन परचेजेस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बताएंगे टू कैरेज ऑन परचेजेस 500 रुपीज. देन आफ्टर कैरेज ऑन परचेजेस वी हैव फर्नीचर. फर्नीचर क्या है, ये एसेट है. इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे फर्नीचर. बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे हम फर्नीचर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, 1000 रुपीज. फर्नीचर की वैल्यू 2000 है. फर्नीचर 2000 रुपीज. नेक्स्ट आफ्टर फर्नीचर वी हैव सेल्स रिटर्न्स. ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में से माइनस कर दिए थे. देन वी हैव रेंट. अगर फैक्ट्री रेंट बोलता है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते. ऑफिस रेंट बोलता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते. बट खाली रेंट बोला तो ये ऑफिस का है समझ के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे हम टू रेंट 800 रुपीज. देन वी हैव मशीनरी 5000 रुपीज, जिसपे अपने को एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%. सो मशीनरी इट इज एन एसेट. इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे हम, बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे फर्नीचर 5000 रुपीज, जिसपे अपने को एडजस्टमेंट है 10% डिप्रिसिएशन. सो 10% ऑफ 5000 विल बी 500. तो डिप्रिसिएशन का मतलब क्या, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट. तो मशीनरी 5000 माइनस डिप्रिसिएशन 500 इट बिकम्स 4500. तब ये 500 रुपए जो अपने को कम हो रहे, ये अपने लिए लॉस है. तो सेकंड टाइम दिस विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 500 रुपीज. देन आफ्टर मशीनरी वी हैव डिटैच 4000 रुपीज. तो डेप्टार्स किसको बोलते हैं, जिन लोगों से अपने को पैसे आना है. सो इट इज एन एसेट. इट विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे डेप्टार्स 4000 रुपीज. देन आफ्टर डेप्टार्स वी हैव डिस्काउंट 400. ये डेबिट बैलेंसेस में दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे टू डिस्काउंट 400 रुपीज. देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल 1000. बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या, ये बिल के पैसे अपने को आने का है. So it is an asset. It will be shown on asset side of the balance sheet. Bills receivable 1000 rupees. Now we are done with all the debit balances. तो जो भी डेबिट बैलेंसेस में थे वो ट्रेडिंग के डेबिट में आते, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आते, या फिर बैलेंस शीट के एसेट्स में आते. नाउ लेट अस हैव ए लुक ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस. तो ये जो भी क्रेडिट बैलेंसेस है ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएंगे, या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएंगे. तो पहला नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज ए लायबिलिटी. It will be shown on liability side of the balance sheet.
तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट 1000 लिखा हुआ है। देन आफ्टर बैंक ओवरड्राफ्ट वी हैव सेल्स, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बता दिए। देन वी हैव परचेजेस रिटर्न्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में परचेजेस में से माइनस कर दिए। देन वी हैव कैपिटल 15,000, दिस विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कैपिटल लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे कैपिटल 15,000। देन आफ्टर कैपिटल वी हैव कमीशन रिसीव्ड, ये क्रेडिट बैलेंसेस है, तो क्रेडिट बैलेंस ये इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इट इज एन इनकम। तो एज पर रूल्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो ये ऑफिस का इनकम है, सो इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे बाई कमीशन 1200 रुपीज, तो बाई कमीशन 1200 रुपीज। तो जो भी क्रेडिट बैलेंसेस में थे वो क्रेडिट में आते या तो लायबिलिटी में आते, तो ये इनकम है तो हम इसको क्रेडिट में बता दिए प्रॉफिट एंड लॉस की। देन वी हैव क्रेडिटार्स 1000 रुपीज, क्रेडिटार्स किसको बोलते हैं, जिसको हम पैसे पे करना है, तो इट इज ए लायबिलिटी, इट विल बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज क्रेडिटार्स 1000। Now we are done with all the items of debit balances as well as credit balances. Just let us have a look of adjustments, दो बार हुए नहीं हुए चेक कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज को ऐड करते, दूसरी बार लायबिलिटीज में बताते। क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बताते, दूसरी बार बैलेंस शीट के एसेट्स में बताते। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस से माइनस करते, दूसरी बार ये प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट के एसेट्स में बताते। आउटस्टैंडिंग वेजेस एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस को प्लस करते, दूसरी बार आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताते। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी की जो भी वैल्यू है उसमें से 10% माइनस करके एसेट्स में बताते, फिर जितना भी डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताते। So we are done with all the items of debit balances, credit balances as well as adjustments. Now let us balance trading account and profit and loss account. अब ये कैसा करेंगे, हम दोनों का टोटल करेंगे। फर्स्ट डूइंग द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, 2500 प्लस 4500 प्लस 1300 प्लस 500, 4500 6000 4 5 6 7 8 8800, तो डेबिट का टोटल 8800 है, क्रेडिट का टोटल 8 प्लस 4 12 12900 है। तो ट्रेडिंग में डेबिट का टोटल 8800 है, क्रेडिट में 12900 है। दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 12900 ज्यादा है। सो ऑन बोथ द साइड्स विल बी रेटिंग द टोटल एज 12900। 12900 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, 12900 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो डेबिट में भी हम 12900 लिखेंगे, क्रेडिट में भी हम 12900 लिखेंगे। अब 12900 में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे। डेबिट का टोटल कितना था, 8800 था, तो सब्ट्रैक्टिंग 8800 फ्रॉम 12900 विल बी लेफ्ट आउट विद एन अमाउंट ऑफ 4100, 4100 which will be shown here as to gross profit C by D, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4100। सब ये चीज क्या करेंगे, वापस प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे 4100। सिमिलरली विल बी डूइंग द टोटल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में जो है ना, ये 1500 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 400, सो 15 प्लस 5 2000 2900 3700। डेबिट का टोटल 3700 है, क्रेडिट का टोटल 4 प्लस 1 5300 है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट का टोटल 3700 है, क्रेडिट का टोटल 5300 है। दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है, 5300। सो 5300 विल बी रिकॉर्डेड ऑन both the sides of profit and loss account. 5300 will be shown on debit side of profit and loss account as well as 5300 will be shown on credit side of profit and loss account. अब क्या करेंगे, 5300 में से 3700 माइनस करेंगे। 5300 माइनस 3700, 5000 माइनस 3000 2000, फिर 300 में से 700 नहीं निकाल सकते तो और 400 निकालना है, तो 2000 में से 400 निकाल दिए, 1600 रुपये बचते। तो इसका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा, 1600 रुपये आ रहा। सो हियर इट विल बी शोन एज टू नेट प्रॉफिट 1600, ब्रैकेट्स में लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये 1600 क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की तरफ जाके कैपिटल में ऐड करेंगे, प्लस नेट प्रॉफिट 1600। सो कैपिटल वैल्यू वाज 15000, नेट प्रॉफिट 1600 इज एडेड, सो इट बिकम 16600। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो दोनों तरफ टोटल सेम आएगा, 16600 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 1000, इट इज 19400। So similarly, we'll be doing the total on asset side of the balance sheet from cash to closing stock. 3000 plus 2000 plus 4500 plus 1000 plus 4000 plus 400 plus 4500, it becomes 19400। तो दोनों तरफ आंसर सेम आया तो अपना प्रॉब्लम सही। Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.